आपने एक पर्सपेक्टिव दिया है तापन सर, वो है सेल्फलेसनेस। ये तो इंश्योरेंस का जो हमारी सोच है उसके एब्सोल्यूट ऑपोजिट है। हमारा पैसा किसी की डिग्निटी, किसी की जिंदगी बचाने काम आ रहा है। तुम उसलिए पैसा दे रहे हो यार, मतलब व्हाई आर यू थिंकिंग तुमको चाहिए? तुमको तो भगवान न करे कभी ये पैसा ना की आवश्यकता पड़े। एआई आपके लिए एक टूल, इट विल मेक यू वेरी पावरफुल। लेकिन अगर आप रोज किसी तरह से नौकरी करने आ रहे हैं और एक ही कार्य रोज कर रहे हैं जो रिपीटेटिव है नेचर में, तो फिर आपकी नौकरी खतरे में। एआई इज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट। और लोग कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस ले लो। It will be so valuable if a person with your experience and knowledge can please tell our youth today, advise them how to secure themselves from now on, not only financially but also personally. You want to be a legend, you want to be very successful, whatever you want to do, you have to run the marathon. Put that together and I promise you will be a legend. There are leaders and then there are stalwarts. ऐसे लोग जो सिर्फ लीड नहीं करते हैं लेकिन हमें इंस्पायर करते हैं दैट वी बिकम better human beings, more secure, and try to find the best within ourselves and become the best version of ourselves. ये एक ऐसे इंसान है जो एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। ये बॉलीवुड डायलॉग्स की एक बहुत अच्छी रेलेवेंस है विच विल नो एज वी कीप गोइंग ऑन। The MD and CEO of Bajaj General Insurance and also the chairman of the General Insurance Council. It is an absolute honor. And thank you once again for taking time out for me, Mr. Tapan Singhal, sir. But thank you, Vishal. It's my honor to be with you. No, and when you mentioned about this filmy dialogue, Haji. I was talking to my younger daughter the other day. I was trying to tell her, about things. So I said, the difference is the dialogue that I grew up with, and the difference is the dialogue that you guys are growing up with. In my times, we had all these dialogues, कि मारेंगे जरूर मारेंगे, जगह भी हमारी होगी, और ये भी होगा। जहां मारेंगे और जब मारेंगे वो हमारे चुनने की होगी। Exactly, and then हंसते हुए like रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए जो जाएंगे, मुकद्दर का सिकंदर। So I said, if I look at the era in which I was growing up, we had all this highly pepped up dialogues in our life, and today we see very soft dialogues. So I think the era has changed. So how movies also and the dialogue that they have represent an era. Yes. It is so phenomenally important. So when you mentioned that, I think yes, we belong to that era. So for us, these things had a lot of importance. And so that, I mean, again, this is the kind of conversation that I knew that we are going to have. Just very impromptu. That really proves that a true leader and a visionary always has his ear to the ground. आपने नोटिस किया कि उस वक्त भारी भरकम था डायलॉग, और आपने जो कंपैरिजन किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और रियल लाइफ में, which is true, क्योंकि art always imitates real life. Exactly. And the way that you identify with it. And हमें जो सुन रहे हैं, हमें जो देख रहे हैं आज, वो भी उसी एरा के हैं जो have seen the change but just about to get their own senses. तो let me start with the low hanging fruit because I cannot miss this opportunity. लोग मुझे मारेंगे अगर आप मेरे साथ हो, तो ये opportunity एक बहुत ही बेसिक सवाल का है which I know you'll answer beautifully. तपन सर, इंश्योरेंस होता क्या है? आप समाज के लिए ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला आज तक विशाल जिसने ये नहीं बोला है कि वो समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहता या अपने मित्रों के लिए कुछ नहीं करना चाहता। मैं लाखों लोगों से मिलता हूँ, बट आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन हु डज नॉट वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी और फॉर पीपल अराउंड देम। इंश्योरेंस को आई थिंक वो तो नाम है इंश्योरेंस, बट फंडामेंटली उसका जो पर्पस है, जो क्रिएशन था, वो कलेक्टिव सोसाइटल गुड के लिए था। आपको मतलब आई हैव ऑलवेज सेड कि इंश्योरेंस एग्जिस्टेड बिफोर सिविलाइजेशन, इंश्योरेंस विल एग्जिस्ट आफ्टर सिविलाइजेशन। इट इज जस्ट द फॉर्म विच चेंजेस, बट द मॉडर्न इंश्योरेंस द वे यू सी इट, शुरुआत कैसे हुई? ये ट्रेडर्स लंदन में बैठे हुए थे, शिप जाती थी उनकी, सेल करती थी 16वीं शताब्दी में, एंड देयर वुड बी सम एक्सीडेंट्स हैपनिंग, सम शिप्स वुड सिंक, some would not come back, some would come back and be very successful. Now the person whose ship sank, that person would go bankrupt, completely finished. It is just his life was dependent on that his ship should come back. So a collection of traders got together and said, ऐसा करते हैं, we never know किसकी ship डूबेगी. So let's put money together.
Okay. and let the ships go. जिसकी डूब जाएगी, that person take the money, so that person doesn't become bankrupt. Oh, I see. That is how Yeah. insurance started. So today also you see what happens is, now let's say health insurance or let's say any insurance that you do, a lot of people put money together. Yes. Some people have no unfortunate incidents in their life. They require that money. From that pool, that money gets paid to that person. So जब आप इंश्योरेंस कराते हो, उसमें दो चीज होता है. एक तो आप उस बड़े पूल का जो समाज की मदद कर रहा है, यू आर पार्ट ऑफ दैट. Yes. You're helping somebody. Yes. Your money is being used to help somebody. And God forbid, if something goes wrong with you, somebody else's money comes to your help. That is all insurance is about. No, nothing else. That is such a beautiful, simplistic way of हाँ. putting it. क्योंकि दो चीज, and I हाँ. say it with a lot of respect. इंश्योरेंस जब हम बात करते हैं तो यूजुअली तक अरे यार इतना पेपर वर्क, बोरिंग, सॉरी, हाँ. बट यू नो दैट. लेकिन एक दूसरी चीज थी विच आई एम सरप्राइज्ड अबाउट कि एक सेल्फिशनेस था कि हम अपने आप को और अपनी इमीडिएट फैमिली को सिक्योर करें. अपने आप को पहले तो सेल्फ इंश्योरेंस ले लीजिए वगैरह वगैरह. लेकिन जो आपने एक पर्सपेक्टिव दिया है तापन सर, वो है सेल्फलेसनेस. ये तो इंश्योरेंस का जो हमारी सोच है उसके एब्सोल्यूट ऑपोजिट है. Because you are clubbing in for others. So this brings me to a point of something that you have initiated and has got a great amount of steam. Just referring to forward karo care, right, sir? इसमें please explain about this because a lot of people have the theory कि यार हमने तो यार 10 साल तक पैसे दिए हैं, अपना प्रीमियम पे किया है, with the grace of God हमें कुछ नहीं हुआ है, तो वो पैसे बर्बाद हो गए. तो please can you take that forward? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मतलब जब भी ऐसा लगे कि पैसे बर्बाद में, सोचना चाहिए कि अगर पैसे मिल जाते तो क्या आपको ठीक लगता. बिल्कुल. कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा ना, तब पैसे मिलेंगे. सो आई डोंट थिंक दैट इज अ मनी दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ. What a brilliant perspective. It's blowing my mind up. Yeah, it is something that should be for somebody else's help. And to give you first my personal example, Vishal, I'm over insured for everything. आप कुछ भी सोच सकते हो. I pay premium and the highest premium that is there in that category at all points of time. I you know? see. तो हमसे लोग कहते हैं कि आप इतना इंश्योरेंस खुद के लिए भी करते हो. हम बोले सिंपली है कि कुछ लोग ना सेवा करते हैं, कुछ लोग ना अनाथ आश्रम जाते हैं. मेरा सेवा करने का तरीका है to pay insurance premium in my own way because this money is getting utilized by somebody else. And God forbid, I should never require this money. No. So this actually came from a friend like yours, जिसने क्वेश्चन ये बोला, यही exactly ये बोला कि तपन मैं तो इतने साल से प्रीमियम दे रहा हूँ, तुम लोग बस प्रीमियम ले लेते हो, कुछ क्लेम नहीं देते हो. तो मैंने उससे पहले पूछा क्लेम चाहिए तो बताओ. तो कुछ होगा ना, मतलब कुछ खराब होगा तब चाहिए. बोले नहीं चाहिए. हम बोले तो फिर ये मांग क्यों वो झटका पड़ता है. दूसरा चीज है तुम्हारा पैसा बताता हूँ किस किस काम आया. So actually I sat down and showed him कि for every 100 rupees let's say in health that the industry takes, 118 is outgo. No, crores of people get benefited. Then I took him with me to a hospital where somebody's admission was happening and they got paid, and somebody was not insured. They were trying to sell jewelry or take loans. And I showed him the difference, and then I said, देखो तुम्हारा पैसा किसी की dignity, किसी की जिंदगी बचाने काम आ रहा है. तुम उसलिए पैसा दे रहे हो यार. मतलब why are you thinking कि तुमको चाहिए? तुमको तो भगवान न करे कभी ये पैसा ना की आवश्यकता पड़े. It is not something that you should be wanting. विक्रम मेरे मार्केटिंग हेड हैं, वो मेरे साथ थे. तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बॉस, इसको हम लोग ना फॉरवर्ड करो केयर है. मतलब जो केयर है, कभी अगर हमको मिला किसी का केयर, तो वो किसी और को फॉरवर्ड होना चाहिए. एंड दैट इज हाउ ही डिजाइन दिस कैंपेन फॉरवर्ड करो केयर ऑन दिस कन्वर्सेशन व्हिच केम टुगेदर. बिकॉज द बेसिक आइडिया वाज insurance is not like a product which you want to experience yourself. मतलब that's the last thing. It's a security net. कुछ something goes wrong, yes, last option. But it is a product in which you help somebody. And how would you come to know of it? And then I think through this forward care, we started putting in testimonials of people who actually benefited, and they started thanking people who paid the premium. जो करोड़ों लोग को क्लेम पे करते हैं हम लोग, and when you see people thanking you for paying your premium so they could be saved in time, your heart gets touched to a large extent. That was the forward care. That is amazing, Tapan sir. इसका ये मतलब है, and correct me if I frame this in a slightly different manner, but please, what you're doing by actually paying premium of insurance is that you're not only protecting yourself. ठीक है, ये तो है ही बात, तो बहुत बढ़िया चीज है. आपने अपने लिए अपने फैमिली के लिए एक नेट बना दिया है. गॉड फॉरबिड आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी. विदाउट इवन यू थिंकिंग अबाउट इट, आप एक बहुत ही अच्छा कर्म कर रहे हो, क्योंकि आपकी बस अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो आपने इंश्योरेंस करवा दिया है, प्रीमियम दे दिया है, लेकिन आपका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप अपने आप को हेल्दी रखें ताकि आपको उस इंश्योरेंस की जरूरत ना पड़े, एग्जैक्टली ऊपर वाला ना करे। और अगर आप अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, इंश्योरेंस भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आप किसी और की मदद कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग इट। एंड व्हाट आई हैव टोल्ड टीम इज लेट्स से एज अ कस्टमर आप ये जानना चाहते हो कि आपका पैसा किसकी मदद कर रहा है, प्लीज लेट अस नो, विल लेट यू नो वेयर योर मनी यू इज हैव गोइंग। दैट ऑप्शन। Yeah, we can tell you ki where your money is going, how many people are getting benefited. No, we'll give you details. Then you start getting associated that insurance is not an ordinary business. It is a business of collective good. The insurance company, all they do is they facilitate this to happen. That is all. Wow. That is such a mind-blowingly, uniquely bigger perspective. And thank you for starting it off in that sense. But we spoke about health. And मैं जानता हूँ कि आप health पर बहुत emphasis देखते हैं. I mean, look at him. Dynamic, good-looking man Uh, who can be in films also. तो मैं जरा whenever I meet him, I am a little careful कि नहीं मेरी नहीं नौकरी ना ले ले. विशाल मतलब वो तो संभव नहीं है। आई थिंक यू गाइस आर डिफरेंट लीग। लेकिन एक छोटी कहानी बताऊं बिफोर आई टेक योर अनदर क्वेश्चन, सॉरी फॉर Please. नो बटिंग इन। तो मैं जब कॉलेज में था तो मुझे शौक आया था कि ना मुझे भी ना एक्टिंग करनी है, बिकॉज आई वाज राइटिंग माय प्लेज एंड आई वाज डूइंग गुड नो, एंड आई वाज गुड अच्छा, इन you wrote plays? यस आई रोट हाँ, प्लेज, आई हाँ. परफॉर्म्ड इन देम। सो मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा कि तो पूना इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ Of टेक्नोलॉजी है course. ना उस टाइम था। सो एक्चुअली फिल्ड इन द फॉर्म, आई गॉट इट एंड की अप्लाई करते हैं। भर के रात को जो सोने गया बहुत डर गया, बोले माँ को पता चलेगा तो बहुत खाएगी। उस वक्त encourage नहीं करते थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर वो फॉर्म भेज देता विशाल तो आज शायद आप यहाँ होते, मैं उधर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा अरे नहीं नहीं, मैं फिर भी यहीं होता क्योंकि मैं फिल्म स्टार से बात कर रहा होता. But you're a star in your own. But you know, I guess somebody up there had different plans that people needed you here. I think we're all placed accordingly, and it's not our choice. Yes. It's never too late, sir. I नहीं। can still play your elder brother if you'd allow me to. You are just very very kind. But sir, emphasizing on health. Yes, हाँ। एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है which you're known for your patience, persuasion and you know your dedication. At a time you had committed कि मैं एक वेजर रखने वाला हूँ, 2 लाख रुपए मैं दूंगा अगर मैं 3 महीने में 15 केजी ना घटा दूं. इसकी कहानी बताइए. वो कहानी दूसरे तरीके से, क्या हुआ विशाल, मंडे सुबह जो मैं लीडर्स थे ना उनके साथ बैठ के वी वुड प्लान फॉर द वीक जी. तो अच्छा, क्योंकि सब लीडर्स तो इतने 7 साल काम किए हम लोग, वो मित्र और भाई की तरह ज्यादा थे, तो दे ऑल सिट टुगेदर। और आप वैसे भी if I may say, छोटी मुंह बड़ी बात, but for the limited few times that I've met this amazing human being, blessed to have, he really in the first moment only makes you feel involved. तो आपके colleagues तो मतलब आपके तो नहीं नहीं, भाई बंधु ही बन गए. ऑल ऑफ यू आर सो काइंड टू से दैट। It's a तो fact. वहाँ बैठे हुए थे तो मैं कहा यार वजन बढ़ गया है, सोच रहा हूँ कुछ काम कर लूँ। तो उनमें से एक कहे नो, संजय नाम था उनका, कितना सोच रहे हैं? हम बोले 15 केजी 3 महीने में सोच रहा हूँ। तो बोले असंभव है, नहीं होने वाला था अपन। अच्छा, अब मेरे समस्या थी, अब आप लीडर हो, आपने एक सेंटेंस बोला कि ये करना है, अब आपके साथ जो उनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो बोल दें कि संभव नहीं है। ओ तो अगर अब आपने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया तो फिर ये तो एक स्टेटमेंट है, ऐसे ना 10वीं स्टेटमेंट होंगे तो लोग बोल देंगे संभव नहीं है। तो फिर कैसे नो एक बहुत ही उम्दा कंपनियां बनाना चाह रहे हो विच शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कैसे बनाओगे? फिर अगर लोगों को आपके कथनी में विश्वास नहीं होगा तो नहीं करना तो कथनी और करनी को तो एक ही करना था, तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। सो हमने कहा कि कर दूंगा, संजय बोला है तो नो कर दूंगा। बोला नहीं होगा, हम बोले विश्वास नहीं है तो शर्त लगा लो। बोले हाँ लगा लीजिए। हमने जितनी तुम्हारी मर्जी। बोले 2 लाख। हमने ठीक है। अच्छा, बस बोल ही दिए. हाँ 2 लाख की शर्त। उस समय 2 लाख काफी बड़ी रकम थी। कहानी आज भी है सर. काफी पहले की कहानी है जी. तो ये कब की कहानी है? हो गया 15-16 साल हो गया। देखिए, हाँ, आज के वैल्यूएशन में वो 2 लाख तो 4 लाख तो होंगे डबल. ज्यादा 15 मतलब समझ लो 7-8 लाख हो जाएगा। तो बोले ठीक है ना, तो हमने कहा हो जाता है। तो मैं घर गया, अपनी वाइफ से बोला कि भाई खाना जो है बस खाली सैलेड खाऊंगा मैं और नो ये फल वल खाऊंगा। तो बोली क्या हो गया? बोले वजन कम करना है। बोले क्यों करना है? बोले शर्त लगी है। बोले सब बेवकूफ़ी की हरकत इस उम्र में भी करते रहते हो तुम। मतलब किया है तो करनी है नो।
Then obviously I put in a regime. It's simple. It's not very complicated. Matlab, you have to have discipline, Yes. Yes. in the food intake, and then you have to exercise a bit. You have to ensure that you are careful about what you do and take care of your nutrition. Matlab, it's a combination of things. So okay, and in about 2.5 months, I have reached that. But बीच में लोग शर्त लगाना शुरू कर दिया. Now this became national news. हाँ जी. तो सब लोग बोले कि कौन जीतेगा ना, मतलब it became like the talk of the town. जी. तो संजय बोला कि वो तो मैं ही जीतूंगा, इट्स इम्पॉसिबल. तो लोग बोले नहीं, आई वुड बेट विद तपन, वो जीतेंगे. तो संजय बोले कैसे जीत सकते हैं यार, इतना ट्रैवल करते हैं, इतना मीटिंग्स रहती है, इतना डिनर मीटिंग्स रहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू लूज इवन 5 kgs, 15 छोड़ दो 3 महीने में. सब कहे नहीं, उनके साथ ही बेट लगाऊंगा. तो बोले क्यों उनके साथ बेट लगाओगे? बोले पता नहीं कैसे करेंगे, बट अगर कहा है तो करेंगे, इसलिए बेट लगाऊंगा. So not a single person, out of thousands of people was ready to side with Sanjay. And then in 2.5 months, we did a weigh-in, and I had reduced 15 kg. 15 days in advance. In advance. Then I told him, Sanjay, पैसा दे दीजिए, अब तो आप हार गए हो. And obviously it was public, जो आसपास जो उस दिन बैठे थे. बोला आप मुझसे पैसे ले ही नहीं सकते हो. हम बोले क्यों नहीं ले सकता हूँ? बोले आप सीनियर हो, कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाएगा. हमने कहा यार ये तो मुश्किल है. हमने संजय बैठो यहाँ पे, देखो ये एक्सेल शीट देख रहे हो? बोले हाँ. बोले तुम लोग का बोनस मैं डिसाइड करता हूँ. तो तुम्हारा इतना बोनस तुमको देना था मुझे, और ये जो लोग हैं जो मुझ पे विश्वास किए थे, तो मैं तो नहीं ले सकता. बात सही तुम्हारी, तुम्हारा 2 लाख कम कर रहा हूँ, तुम सामने देखो होते हुए, और ये इन लोगों में बांट दे रहा हो जाएगा. हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है. तो शर्त हारे हो तो बोला गलती हो गई, अब जीवन में कभी नहीं बोलूंगा, ये मत करिए, बहुत ज्यादा रकम है पैसे. हम बोले ठीक है, तो सबको खाना खिला दो. बोला ठीक है, लेकिन कोई 5 स्टार में नहीं जाएंगे. हम लोग 5 स्टार नहीं जाएंगे. तो हम लोग दिल्ली के चांदनी चौक में उन गलियों में सब भर के कुछ 30-40 लोग उन लोग उसमें 30-40 लोग खूब मन से खाना खाया, लस्सी भी पी, सब कुछ किया. वो बोला कितना खाओगे यार तुम लोग आज? 2 लाख से मतलब 5,000 का भी बिल नहीं होगा यहाँ चांदनी चौक में. लेकिन उस दिन आपने भी खाया, पराठे वाली गली में आपने भी खाए. इट वाज गुड फन. मतलब बट द लेसन टू बी लर्नड इज दैट in life, if you say something, yes, do it, because that is what people know and respect you for. And this again comes back from a story which my mother would tell me when I was growing up, कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. अगर बोल दिए हो तो करो. So all my life I think that has been a founding, like the backbone of what I do. If I say something, it has to be done. And that's why people better, if he has said it, it will happen. I am live testimonial of that. I had met Tapan sir during the COVID time on an online discussion, and I said, Tapan ji, I want to be involved with you and anything that you do at that time. And he said, Vishal, you will see me soon. And I feel that now it's been 3 times that I've seen you in the last 1.5 months. Yeah. And this is the kind of testimonial I can personally give. But there is another testimonial about his, एक बार मैंने commitment कर दी तो मैं अपनी की भी नहीं सुनता हूँ, is that at the age of 33-34 के आपने कहा था, और एक घमंड नहीं था, ये था कि मैं CEO बनूंगा. क्या ये सही है? या आपको लगा सब लोगों ने हमारी कुछ कहानियां बताई? हाँ जी, बड़ा रिसर्च किया जी, इतना तो out of all respect, and some of your stories are fables, they're all over. It became national news about your wager कि 2 लाख रुपए और 15 kg होगा या ना होगा. I'm sure side bets भी हो रहे थे उस वक्त, but even this was a tale. When I was building this company early on, and a lot of people sitting together, so I told them, अभी भी कुछ लोग हैं who were part of that as a witness. तो I said यार इस कंपनी का CEO तो मैं ही बनूंगा और कोई रोक नहीं सकता. So I'm known to know. I said I grew up in an era where dialogues were like this. Rajkumar, and Dilip Kumar, Amitabh Bachchan. So हम उस era का तो dialogue तो हम लोग inherent उसी वजन के होंगे डायलॉग. हाँ, क्वालिटी है. That's why I say, well, don't get carried away. So I said that बनूंगा तो मैं ही, और कोई मुझे रोक नहीं. In fact, the word I used, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता. अच्छा. So they all my like they were reporting into me. So वो बेचारे क्या बोलेंगे? तो they would say हाँ बोला तो ठीक ही है, मतलब. लेकिन पीठ पीछे बोले कि क्या बोल रहे सर? क्या बोले exactly? They may have said ठीक है कि नहीं? Exactly. Then fast forward, I think in just about in 4 to 5 years time, I had a chance to become the CEO.
Because already the sales head, I was already the distribution head, no, I was building the company. So at the age of 38, you had the Yes, opportunity. हाँ, yes, 38, yes. That's very 38, young. हाँ. So I had a chance. Exactly यही बोल के नहीं बनाया. I often walk into these situations. मैं क्या बोलूं? तो one, because I was the senior most salesperson, and there was somebody else who was a head for technical. But broadly, people thought कि अब इस बार CEO यही बनेगा, and I also was very confident कि मैं ही बनूंगा. But the last moment, exactly बोला अभी तुम्हारी उम्र बहुत है, और ये तुम्हारे जो मित्र इनकी उम्र ना, he is 50 plus, तो he should be getting Seniority wise. हाँ, getting a chance. तुमको तो अभी बहुत समय बाकी है, तो इनको बना दें CEO. तो हमने कहा ठीक है, बना दीजिए. So can I ask you? I'll just pause you for 1 second. We'll continue this, but this is a very important point क्योंकि life for all of us, whatever age we are, we go through our trials and tribulations. हमारे ज़िंदगी में सक्सेस भी होते हैं और ज़्यादातर फेलियर्स भी होते हैं. स्पेशली आजकल की दुनिया जो है वो पुरानी तरह की नहीं होती है कि आप बस इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, ये एक फिक्स्ड होता था. अब तो कितने सारे फील्ड्स आ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन इसमें अनसर्टनिटीज तपन सर बहुत है, तो फेलियर्स भी बहुत होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी बहुत ही होते हैं. तो इस वक्त at the age of 38, 39, where you knew that this, and even your seniors and the decision makers, वो जानते थे कि you are worthy of it, लेकिन फिर भी they went in another direction at that point. How did you feel at that point, and did you take it as a failure? How did you deal with it? क्योंकि बुरा तो बहुत लगा होगा उस वक्त आपको. थोड़ा और सुनाता हूँ, it will answer all your questions. Yes, sir. तो जब ये बोले हमने ठीक है, तो market came to know कि CEO नहीं बना, तो obviously one of the leading business houses, they invited me to become CEO of their company at that age. तो ऐसा नहीं. They tried to poach you. हाँ, that's the word. तो अब जो सवाल विशाल खाली ये नहीं था कि यहाँ नहीं हुआ, दूसरा तुरंत ही market offered me to become a CEO. Yes. So I had the option to become a CEO at that age. Yeah. Leading business house. ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कंपनी. Would you like to name it? नहीं, it's not appropriate. जब जहाँ जिस दरवाजे पे नहीं गए तो उस दरवाजे का नाम लेना चाहिए. हाय क्यों नहीं गया मैं वहाँ, बता सकते हो विशाल? The first thing coming into my mind, and also knowing you little, is loyalty. नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि CEO तो आप इस कंपनी का That's incredible. तो हमने कहा यार बोल तो दिया सच्ची में that was the reason. हाँ, तो हमने बोल तो दिया. अभी तो यार मतलब जवान है, माँ ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जा, जो भी वचन दे दिया, CEO तो यहीं का बनना. और जिसको दिया, जिसको बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं. अभी क्या है, बन जाएंगे, ऐसी क्या हड़बड़ी है, काबिलियत तो है ही है, भगवान ने चाहा तो कुछ नहीं हुआ तो बन जाएंगे. फिर उसके 3 साल बाद फिर मौका है CEO बनने का, क्योंकि ये व्यक्ति फिर छोड़ के दूसरी कंपनी चले गए. तो फिर जब मौका आया, अब तो बोले अब तो श्योर, अब तो कंपनी में भी कोई मतलब आसपास भी नहीं है अब तो. अब आप 41 इश के हो गए हैं. तो अब तो कोई आसपास भी नहीं है, अब तो बन ही जाएंगे. और फिर लास्ट डे फिर बताया कि व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, बिकॉज वी वांटेड टू ब्रिंग इन सम आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव. तो अभी आप कुछ दिन और रुकना होगा आपको. अगेन दैट पर्सन वाज अगेन 50 प्लस. बोले कि क्या फर्क पड़ता है, फिर बन जाओगे. तो फिर मैं निकला, बोले यार कसम से मतलब तो फिर मेरे जितने कंपनी में लोग थे फोन करना शुरू किए जो मुझे चाहते थे, अरे सर आप CEO कब बनोगे. तो हमने कहा यार पता नहीं कब बनूंगा, पर तुमसे वादा करता हूँ जब भी बनूंगा बहुत ही बेहतरीन CEO बनूंगा. तो वेट करता हूँ, तो चिंता नहीं कर, बनूंगा तो हुई हूँ, मैं बोला है तो बनूंगा. फिर आई थॉट कि मतलब कि अभी भी इतना पावरफुल मैं नहीं हूँ कि लोग ऑप्शन सोच पा रहे. तो अपने बुलंदगी पे काम करना है, मुझे अपने को और काबिल बनाना है और मजबूत बनाना है. So to answer your question, people get disappointed. I felt I have to become very, very powerful. Beautiful. और जब भी CEO बनूंगा, I'll become so skilled that I'll be among the best CEOs that the country has seen. I started working very hard, building relationships, building businesses, meeting people, acquiring talent. So if I was working, let's say X amount, I started working 2X amount. I said कि वो शेयर को तो जो खुद को कर बुलंद इतना. And then at 44, I became the CEO. The opportunity came knocking for the third time. Yes, and then I became CEO. तो सब जो कहा था कि इस कंपनी का CEO बनूंगा, वो पूरा कर दिया. कहा था अच्छा CEO बनूंगा, वो पूरा कर दिया. Won so many awards, सब कुछ.
तो बट द लेसन टू बी लर्न वाज कि कहीं मतलब उसमें ना तो डिसअपॉइंटमेंट था, ना तो जीत का एरोगेंस था। मैटर ऑफ फैक्ट है, कहा था तो करेंगे, करेंगे। अगर नहीं बना तो ये नहीं है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, नो भगवान ये क्या कर रहे हो, दुनिया बुरी है, पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं। मतलब फिर अपने को और बुलंद करना, इतना बुलंद करना है कि लोगों को ऑप्शन ही ना रहे, नो, कि कुछ और कर सके। सो द परसिवरेंस और अपने लुक इनवर्ड्स, अक्सर जब हमारे तौर से या डजंट गो इनटू आवर फेवर, वी टेंड टू प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स, करेक्ट सर? वी टेंड टू ब्लेम सर्कमस्टांसेस कि उनकी चॉइस गलत है, आई एम द राइट चॉइस फॉर दिस। बट आई गेस व्हाट वी लर्न फ्रॉम योर स्टोरी इज समथिंग वी शुड ऑलवेज फॉलो, कि पहले इनवर्ड्स देखिए, अपने आप को करो इतना बुलंद कि ऊपर वाला आपसे पूछे कि आपकी मर्जी क्या है, इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ आप जो कर रहे हैं। लाइफ लेसन, टू अनदर लाइफ लेसन, ज्यादातर जो हमारा जो भारतवर्ष है इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर्स दैट वी हैव इनवर्ड्स, इज दैट हमारा यूथ जो है वो इतना बड़ा पॉपुलेशन है और एजुकेटेड है। 20s में वी आर फाइंडिंग आवर फीट, वी आर स्टार्टिंग आवर लाइव्स, वी आर जस्ट अबाउट मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मनी। Tapan sir, it will be so valuable if a person with your experience and knowledge can please tell our youth today, advise them how to secure themselves from now on, not only financially but also personally. सो मैं वो बताऊं जो मैंने बच्चियों को बोलता हूँ मैं, नो, आई हैव टू डॉटर्स, सो व्हाट आई टेल देम इज व्हाट आई टेल। मेरे हिसाब से माय लर्निंग हैज बीन द बॉडी एंड माइंड इज अ मशीन that has been given to you. If you take care of it well, you run a marathon, no? Otherwise, it's a sprint, no? And you want to be a legend, you want to be very successful, whatever you want to do, you want to make a lot of money, you have to run the marathon. That is where, no, you can sustain it. तो सबसे पहली चीज़ है कि जब लग नहीं रहा है कि शरीर और दिमाग का ख्याल रखना है, तब से ख्याल रखना शुरू करो, नो? See them as a machine. मतलब अगर आपका दिमाग और शरीर आपने उसे ट्यून कर रखा up to the highest order, no, then you will run a marathon. And when you run a long marathon, एक दो ups and downs कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, you will win. मतलब इसमें there's no rocket science. आपकी जीत निश्चित है अगर आप शरीर और दिमाग को एकदम ट्यून रखते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस ऑन दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू यू फोकस ऑन दैट। ऐसा नहीं कि बहुत आपको जिम करना है या आपको ना 20-20 किलोमीटर दौड़ना है। ये मशीन बहुत ही गजब है, बहुत हल्के से भी ना बहुत फाइन ट्यून रहती है। जो 5-6 चीज़ करनी है, आधा घंटा सनलाइट में रहना है, नो, 45 मिनट वॉक करना है, नो, दोस्त मित्र रखना है पास, हो सके तो 15-20 मिनट मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन भी बहुत लोग कहते हैं कि मैं शांत नहीं बैठ सकता, मैं दिमाग शांत नहीं रह जाता है। एक किताब है भैरव विज्ञान तंत्र, जो नो हज़ारों साल पहले लिखी गई थी। वो कहते हैं शिव जी ने पार्वती जी को बताया था अमरनाथ केव में। उनके कहा है कि 112 तरीके मेडिटेट करने का, कोई भी एक आपको सूट करेगा और कोई तरीका है ही नहीं। कोशिश करिए, अलग तरीके हैं, जो भी आपको सूट करे, नो। और रात को सोने जाएं तो बहुत खुश रहिए और भगवान को और सबको ना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए कि भाई गजब का दिन रहा, आज ये सीखने को मिला, आज ये किए, और ये बोल के नो आराम से सोइए। खाने पे कहीं ओवर इंडल्जेंस मत करिए, जो अच्छा लगे खाइए, थोड़ा बहुत खाइए। इट इज़ नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, नो। इफ इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, देन यू कैन वेरी इजीली on a consistent basis keep your mind and body very healthy. The next thing you have to do is realize that every individual on this planet has some special talent. बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि what am I good at. मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि अगर मुझे गाने का फील्ड में मैं जाता या लता मंगेशकर जी इंश्योरेंस बिजनेस फील्ड में आती, तो पता नहीं वो तो सक्सेसफुल होती ना होती, हमें आइडिया नहीं, बट मैं ज़रूर फेलियर होता, मतलब ना, क्योंकि मेरे पास वो टैलेंट उतना है नहीं। आई कैन नॉट सिंग वेल, बट अच्छा बहुत लगता है, सो आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स। बट टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग, नो, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉल्विंग थिंग्स, ये मेरा स्किल सेट है। सो इफ दैट इज माई स्किल सेट, अगर माई प्रोफेशन इज गॉट अलाइन टू दैट स्किल सेट, देन इट्स लाइक मैजिक। तो ये तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिला जिसके पास
मतलब भगवान ने कुछ उसको यूनिक नो टैलेंट। नहीं दिया हो, असंभव है। दैट इज़ माय बिलीफ। तो आपको पता नहीं होगा, जैसे हमने कहा मेडिटेशन के भी 112 तरीके हैं। एक तरीका जो सांस का लोग बताते हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, पर ऐसा मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, वो तरीका गलत है। तो बहुत बार आपको डिस्कनेक्ट लगेगा, आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपको फ्रिक्शन दे रहा होगा आपको, यू नॉट बी लाइकिंग इट अलाइन टू इट। हाँ। जी हाँ। But the moment you figure out what you like and you keep your body and mind tuned, and you get what you like, now you have reached the sweet spot. Of course. Now the perseverance, the push forward, the obsession comes into play. Yeah. Put that together and I promise you will be a legend in where you are, what you do. मतलब कोई इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल। विशाल, इट्स अ हाँ। वेरी सिंपल Yeah. मेथोडोलॉजी। इसमें किसी को दोष देना, अपने आप को कोसना, सर्कमस्टेंसेस की बुराई करना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। मतलब दिस विल पुल योर एनर्जी लेवल डाउन। Yes. कोई भी चीज़ नेगेटिविटी आप सोचोगे ना, वो आपकी एनर्जी लेवल डाउन करेगी। किस्मत जो भी रहे, सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, टीचर्स, पेरेंट्स, कंपनी कैसी भी रहे, इट डजंट मैटर। मतलब आप हो, आप स्पेशल हो, आप तो मतलब विजय होगा ही होगा, आप जहाँ भी रहो। बस ये 2-3 चीज़ को ट्यून रखो और मैराथन की तैयारी में रहो, जीत तो होगी ही होगी। Incredibly motivating. There are very rare times where I lose myself in conversations and say I'm not that professional. I lost myself here, but that's thank you. I mean, it touches a spot. और आपने जो एक चीज कहा है कि our body is so forgiving. It is such a simple but unique machine. कि थोड़ा ही दीजिए और आपको उसका आउटपुट 10 times मिलेगा. And I believe in this theory that I also, if I may introspect, have been blessed. You know, Tapan sir, I don't feel I have worked one day of my life. Yes. Because I've been blessed with aligning my passion with Exactly. what makes Then life is joyful, विशाल, life यही is है। joyful. तो उसपे इसलिए वो आपको बस अच्छा पता नहीं होता है, you just keep on trying, फिर कहीं लगता है ये कहीं तो हो मजा जाता आ रहा है। जी जी और जब वो चीज़ समझ में आ गई ना, बस ट्यूनिंग हो गया, then just you go for it। उसके बाद तो don't lose it, मतलब don't lose it. And also a beautiful thing I had read recently, I'd love to share it with you. It feels like the mahal for it. कि the universe is built for us. ये हमारे खुशी के लिए, हमारे प्रोग्रेस, हमारे सक्सेस के लिए है. Would you agree with that? Everything, कुदरत is for us. मेरा ये सोचना कि यूनिवर्स जो है ना, आपकी यूनिवर्स आप ही बनाते हो। हाँ. ठीक है, दैट्स द वे आई Yeah. थिंक। इसलिए मैं बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा, इंसान है, मुझे भी आता है, या गुस्सा आए, जेलेसी आए, या फ्रस्ट्रेशन आए, ये बहुत स्वाभाविक है। मतलब इसमें कभी किसी बुरा नहीं लगना, वो भी आ रहा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए, समझिए, वो ठीक है। बट जितना उसको ऑब्जर्व करेंगे और जितना उसको आप धीरे धीरे ओवर टाइम वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी यूनिवर्स उतनी खूबसूरत होती जाएगी। तो जो यूनिवर्स है, आप You are यूनिवर्स, the universe. हाँ, आप यूनिवर्स से नहीं है, यूनिवर्स आपसे है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, तो जीवन आप बदल सकते हो। क्योंकि आपका यूनिवर्स आप ही क्रिएट कर रहे हो। मतलब जिस तरह जो सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो वो आप ही ने क्रिएट किया है। मतलब जब ये बात आप समझ जाओगे ना, तो फिर तो मतलब जादू है, फिर तो उसके बाद दुनिया तो आपकी है। और ये कॉन्वर्सेशन भी बहुत जादू है. But now the second part of this question is that of course means to an end, money, finance, security. For the youth जो अभी अभी कमाना उन्होंने शुरू किया है, where would you advise them to start their first step? जब मैंने नौकरी शुरू किया, आप लोग में जो नौकरी शुरू किए होंगे, तो माँ टिपिकली बोलेगी कुछ पैसे बचाओ फॉर द रेनी डे, एज इट इज कॉल्ड, सेव फॉर द रेनी डे। और तो उसमें हम लोग लग जाते हैं। एक तो तनख्वाह कम, जानते ही हो शुरुआत में तनख्वाह क्या मिलती है, तनख्वाह कम, उसमें भी खर्चे ज़्यादा, उसमें भी बचा भी लो पैसे। मतलब जीवन तो इतना से एकदम से मतलब 25-26 तारीख तो पैसे रहते ही नहीं थे खाने पीने को। दोस्त बुला भी लिया तो मतलब शर्म आती थी कहाँ जाए। तो जो रिलेशन हुआ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने के बाद कि जो रेनी डे क्या है, शरीर खराब हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जो चीज़ें हैं वो टूट सकती हैं। तो हमने एक बार कहा कि सब रेनी डे लिख लो, उसका इंश्योरेंस करा लो और अपना कैपिटल फ्री कर लो अपने एक्सपीरियंसेस के लिए। तो मुझे शुरू से था कि जीवन अगर मिला है
आई हैव टू हैव लॉट एक्सपीरियंसेस, तो दुनिया देखना या कोई एक्सपीरियंस है ना वो चीज़ करना, या I've done everything: skydiving, bungee jump, diving with sharks, whales, hot air balloon over Africa. आप जो भी चीज़ वाओ! सोच सकते हो विशाल, सब किया होगा हमने। तो उसके पे डिप्लॉय करो। आई थिंक दैट फ्रीड मी अप अ लॉट। तो पहला चीज़ तो वो था कि आई सेव्ड फॉर द नो रेनी डे, छोड़ के इंश्योरेंस करा लिया। बोले यही रेनी डे है, कुछ होगा तो इसमें काम आएगा, नहीं आए किसी और काम आ रहा है, बस अपना किसी और का छाता आ रहा है, बस आई एम फाइन। So and then I spent a lot on experiences, which actually redefined my personality to a large Of extent. course, of I course. think that is how I would think of money. बहुत लोग कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस ही ले लो। पैसा आज जो 1 रुपये आपको जो सुख देगा, आज से 10 साल बाद अगर वो 1 का 5 रुपये भी हो गया, वो आपको उतना सुख नहीं देगा जितना आज का वो 1 रुपये देगा। So spend your experiences, no? यू नो सर, आई एम सो सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सो, क्योंकि मैंने सोचा कि आप वो पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे हमारे लिए, लेकिन आपने क्या कहा कि अपने आप को सिक्योर करो एंड देन स्पेंड योर वेल्थ इन बिकमिंग वेल्दी विद एक्सपीरियंसेस। Exactly, no? अमेजिंग। हाँ, क्यों एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, हम बोले इफ आई हैव इनफ स्टोरीज टू टेल माय ग्रैंडचाइल्ड दैट आई डोंट रन आउट ऑफ स्टोरीज एंड माय ग्रैंडचाइल्ड डज नॉट गेट बोर्ड, आई हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। और जीवन क्या है दैट इज विशाल, no? इनक्रेडिबल। No? That is absolutely incredible. It's an ever evolving world, right? We are thankful and grateful that हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे वक्त में रहते हैं जहाँ पर इतना कुछ बदल रहा है, कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है तपन सर, राइट? भारत के बारे में आई नो दैट देयर इज अ ट्रू पेट्रियट इनसाइड यू विथ अ ट्रू फीलिंग, नॉट अ सूडो नेशनलिस्टिक अप्रोच। व्हाट इज योर टेक ऑन भारत? हम कहाँ हैं, हम कहाँ थे, थोड़ा पर्सपेक्टिव, हम कहाँ हैं, और 10 साल, 15 साल, 20 साल, विच इज़ वेरी लिटिल इन अ नेशंस हिस्ट्री, लेकिन इस लिटिल ड्यूरेशन में आप भारत को कहाँ देखते हैं? विशाल फिर से लुक फिल्मी, हम क्यों नहीं, क्यों नहीं? राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे। आहा। सो आई थिंक आप भारत को देखते हो वेल्थ से, बहुत लोग मेजर करते हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी से। मुझे उस सब से मतलब नहीं। हमारे लिए भारत तो मतलब वो गंगा नदी की तरह है ना, ऑलवेज फ्रेश, ऑलवेज नो मूविंग। It has been the spiritual capital of the world. It has taught people what spiritualism is about. आज भी नो चाहे मेडिटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, योग हो, चाहे वो नो फिलॉसफीज हो, आप दुनिया के, अब तो मुझे ईश्वर बहुत कृपा रही, दुनिया में हर हर देश जा सका, बड़े बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से मिला, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर से मिला। नो चाहे कुछ भी देखूं, अगर ध्यान से देखता हूं तो कुछ ही 4-5 ग्रंथ हैं, उन्हीं से ना सब ओरिजिनेशन है। मतलब एक कोई ऐसा ग्रंथ जो देखिए, इज कमिंग ऑन द टॉप ऑफ योर नहीं माइंड? नहीं, टॉप ऑफ द माइंड क्या है, मतलब आई कैन टेल यू 3 ग्रंथ, तो आई थिंक इफ यू हैव नॉट रेड इट, रीड देम। पहला है पतंजलि योग सूत्र, which was written thousands of years back by sage Patanjali. It is a scientific method of how to attain enlightenment, no? मोक्ष। मोक्ष, enlightenment, that is how, no? And उसमें उन्हें लिखा था पतंजलि जी ने हजारों साल पहले कि अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते हो तब भी आप enlightened हो सकते हो, अगर करते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। इमेजिन, मतलब हजारों साल पहले, नो व्हाट फॉरवर्ड थिंकिंग। व्हाट फॉरवर्ड आज आप बोल दो तो इसे ट्विस्ट और हाँ, टर्न करके पता नहीं exactly, क्या। no? हाँ जी। And then he writes how to attain that, and no, the creation of yoga, and most techniques that you see, no, would come from there, and it is like stillness of mind, no, which is the achievement. And to do that meditation पे Bhairav Vigyan Tantra, imagine, again written thousands of years back, Bhairav, Shiv, Vigyan, science, Tantra tool. Imagine हजारों साल पहले, we are talking of the scientific methodology, no, of no attaining no stillness of mind or enlightenment. 112 ways to meditate, that is where, no, that Yes. gets laid down, and you can decide which one suits you. Then the third, because in this quest of how to become enlightened, is another interesting dialogue, which is called Ashtavakra Gita, which Ashtavakra gave to, no, Janak, the father of Sita. And Ashtavakra is a boy, deformed in 8 places. उसकी अलग कहानी, वो इंटरेस्टिंग कहानी। So उसमें he says कि I would just love to, please can you repeat that, because I'd love our viewers to research into that. What is it? Ashvakra Gita, no? Ashvakra Gita. Ashtavakra. Asht is 8, Vakra is deformity. Oh, तो अष्टवक्र। वक्र गीता, तो नो, तो उसमें क्या हुआ कि इसी कहानी पर बताता हूँ, फिर इस किताब के बारे में बताता हूँ। अष्टवक्र was a young boy, and his father was a very renowned scholar in the court of King Janak.
जनक जी एक दिन सो रहे थे और उनको सपना आया कि वो बहुत गरीब हैं और भूख लग रही है, खाने को नहीं है और कपड़े फटे हुए हैं और जंगल में खो गए हैं। एंड इट वाज अ वेरी इंटेंस ड्रीम। एंड व्हेन ही गॉट अप ही वाज कंफ्यूज्ड कि वो सच है या जो मैं राजा हूँ वो सच है, मतलब कि वो भी इतना इंटेंस था कि वो सच्चाई दिख रहा था, या ये इल्यूजन है कि वो इल्यूजन है। हाँ, So he called lot of people to explain to him, and a debate was happening. पहले तो ऐसा मतलब if you look at our हिस्ट्री। philosophy, we always encourage debate. हम लोग कभी ये नहीं कहे कि यही सच्चाई है, मतलब नो, जी। आपका पूरा हक था टू डिबेट कि ये सच्चाई नहीं है या ये ईश्वर नहीं है या नो, एंड इट वाज एनकरेज्ड। तो राजा ने बुलाया सबको डिबेट के लिए और अष्टवक्र के पिताजी भी उस डिबेट में थे, एंड somebody came running to him and said कि आपके पिताजी हार रहे हैं। एंड हिज फादर वाज अ रिनाउंड स्कॉलर। तो अशोक बुला रहे, फिर तो बहुत ही उम्दा लेवल डिबेट हो रहा होगा यार, माय फादर इज आल्सो लूजिंग, लेट मी गो एंड सी। सो ही रशेस टू द कोर्ट। मोमेंट ही एंटर्स द कोर्ट वेयर द डिबेट इज हैपनिंग, तो जो स्कॉलर्स थे वो अष्टवक्र को देख के हंसना शुरू कर दिए। ही वाज डिफॉर्म्ड, ही डिड नॉट लुक वेरी प्लेजेंट। तो जब उसको देख के सब हंसने लगे तो अष्टवक्र उनको देख के और जोर से हंसने लगा। तो राजा वाज वेरी सरप्राइज, बोले यार ये क्यों हंस रहा है? तो बोले अष्टवक्र तुम क्यों हंस रहे हो? बोले राजा हमको किसी ने बताया कि आपके यहाँ बहुत स्कॉलर्स आए हुए, दुनिया भर से डिबेट हो रहा है, मैं तो उनको सुनने आया और आपके यहाँ तो खाली मोची बैठे हुए हैं। तो राजा बोला कि मोची बैठे हुए हैं, कैसे बोल रहे हो? हम बोले जो व्यक्ति खाली चमड़े पे जज करे वो तो मोची हुआ ना, वो स्कॉलर कहाँ हुआ राजा? तो राजा ने बोला यार इस लड़के में बहुत दम है। तो बोला बाकी बोला तुम लोग जाओ। उसको बोला अष्टवक्र आप आओ, आप मुझे समझाओ। तो उसमें एनलाइटनमेंट की बात हो रही थी, तो अष्टवक्र ने कहा कि एनलाइटन तो सब हैं, आप भी हो, खाली आपको पता नहीं है। सो ही गेव अ वेरी डिफरेंट नो टोन टू एनलाइटनमेंट। ही सेड एवरीबॉडी इज एनलाइटन। हमने क्या कहा कि दुनिया तो आप ही क्रिएट कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आप एनलाइटेंड हो। नो, दैट इज द वे अष्टवक्र डिफाइंड टू जनक, एंड जनक वाज सो वेरी impressed, and that is when he also became enlightened, in the whole thought process of how it goes. So किताबें बहुत है, जब ये इतनी तीन ही पढ़ लो आप, उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस, रिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई भी फिलॉसफी किताब पढ़ोगे, you will find that it will originate from these, One of these grants. and these were written thousands of years back. तो ऐसे बहुत सारी हैं, वेद हो गई या भगवत गीता हो गई, मतलब आप पढ़ना चाहो तो मतलब द फिलॉसफी इज रिटन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, एब्सोल्युटली। द मदर ऑफ ऑल फिलॉसफीज। जिस देश में ऐसे लेवल की फिलॉसफी थी, इतनी सोच थी, इतना फ्रीडम था टू चैलेंज एंड डिबेट एवरीबॉडी, इतना, लोग कहते हैं वन शुड बी टॉलरेंट। टॉलरेंट इज अ नेगेटिव वर्ड। टॉलरेंट मतलब कि आपको बुरा लग रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू, वन शुड बी एक्सेप्टिंग। मतलब जो देश में एक्सेप्टेंस था, टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जी। दिस कंट्री टॉक्स ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस कंट्री टॉक्स ऑफ philosophy of the highest order. तो you have to be blessed to be born in this country. मतलब आपके कर्म बहुत ही अच्छे भी होंगे विशाल, कि ऐसे महान देश में आप पैदा हुए हो। इकोनॉमिकली ठीक है, युद्ध हुआ, कभी हारे कभी जीते, कभी कोई हमारा दौलत छीन के ले गया, फिर कमा लेंगे, वो तो टेम्पररी है ना। मतलब पर्सनल वेल्थ आप 5-10 साल में बना सकते हो, देश का वेल्थ आप 100-200 साल में बनाओगे। अभी तो खाली 75 ही साल हुए हैं, बन जाएगा। वो तो हम लोग आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, फर्स्ट भी हो जाएंगे एक दिन, उसकी हमें चिंता नहीं है। बट जो हमारी सोच थी, जो हमारी फिलॉसफी थी, जिस बड़े महान देश में हम पैदा हुए हैं, उसकी चिंता रहती है। उस पे हम लोग को ना कभी वो नहीं होना चाहिए। बट तपन सर, दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पोर्टेंट कि हम उस फिलॉसफी को प्रिजर्व करें। दैट इज आवर नेशनल वेल्थ इन रियलिटी। डू यू थिंक कि हम कर रहे हैं? नहीं होगा। अभी तो आप देखिए बहुत सारे यंगस्टर देखता हूँ ना, मतलब हम जब यंग थे हमको कौन सा मतलब फिलॉसफी समझ में आते, बैठा दी अगर माँ पूजा में, सोचा जल्दी खत्म हो ना प्रसाद मिले, मतलब हम तो वही फिलॉसफी में थे। आज समझते हैं, आज का यूथ तो बहुत ही जागरूक है, मतलब स्पिरिचुअली। हाँ, आई फाइंड टुडे यूथ अमेजिंग, बहुत ही हमको गजब लगता है, इतनी कम उम्र में उनकी इतनी समझ है। मे बी इसमें एक्सपोजर ज़्यादा रहा। हम जब छोटे थे तो मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था ना, टेलीफोन भी मोहल्ले में एक होता था तो उस टाइम पे मेरे एक्सपोजर, हमारे वही 4 मित्र थे जिन्होंने अगर बता दिया कि आज सूरज जो है ना पश्चिम से उगेगा, तो हम मान लेते हैं सूरज पश्चिम से उगेगा। हम तो उस समय बड़े हुए। आज के यूथ के पास शायद एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उस यूथ का ना कि एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसकी सीख ज़्यादा है, जिज्ञासा है उसके पास, तो वो आई थिंक दे एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड फास्टर। आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट विशाल। मुझे कभी किसी चीज़ से चिंता नहीं होती, मुझे पूरा विश्वास है कि जो सही है, जो सच है, वो उभर के तो हमेशा आता ही आता है, जीत तो उसकी होती ही होती है।
लुकिंग फॉरवर्ड, आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आस्क कि आजकल एआई का ज़माना बहुत है। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजिकली इंटरनेट आया था, दैट वाज अ बिग डील कि यार ये तो ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर देगा, उस वक्त भी कह रहे थे, जी। राइट? एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ बूम, अ ब्लेसिंग, एंड एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। अब एआई की बारी है। अब बोल रहे हैं कि एआई जॉब्स ले रहा है, ऑफ कोर्स इट्स फैसिलिटेटिंग अस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हो रहा है एआई के बारे में। I know you're very forward thinking, along with being very knowledgeable about the past and the present. AI, I'd love to get, because this was not a part of my discussion with you, but I really would like to understand what is your take on AI and where do you feel that it's going to take us forward? Also, if you wouldn't mind personalizing it with the insurance world and the finance world in general. नहीं, एआई तो इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच कुड हैव हैपेंड नो Hmm. इन आवर लाइफ टाइम इज द वे आई सी इट। बट पहले जॉब्स की बात बोलता हूँ, फिर इस जी। बात पे आता हूँ, फिर अगली चीज़ें बताता हूँ। जब 1990 में मैं आईटी हेड था, नो, उस टाइम कंप्यूटराइजेशन शुरुआत हो रही थी, नो, तब डॉस था, विंडोज आ रहा था और कंप्यूटर्स ऑफिस लगना शुरू हुए थे। यूनियन स्ट्राइक पे चली गई Hmm. क्योंकि यही हल्ला था कि कंप्यूटर आएंगे तो नौकरी चली जाएगी। चली जाए, यू नो। इनफैक्ट नेगोशिएशन में कंप्यूटर अनाउंस दिया गया सबको तनख्वाह में Hmm. टू अलाउ कंप्यूटराइजेशन टू हैपन। Happen. हाँ, ये Wow. था 1990 की बात है, जी। ज़्यादा दिन पहले की नहीं बात, मतलब कितना 30-35 साल पहले की बात था। तो पीपल गिवन कंप्यूटर अलाउंस सो दैट कंप्यूटेशन कुड हैपन। फास्ट फॉरवर्ड अगर देखता हूँ तो नौकरियां गई क्या? नहीं, नौकरियां तो और बनी। हाँ। और भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा कंपटीशन, बिकॉज दैट इज द टेक इंडस्ट्री केम व्हिच गिव इंडिया द नो द ग्रोथ स्टोरी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक Skilled राइट, also. skill which gave, and it made the world a shorter place, and that is what propelled no countries in Asian market to no really become global Absolutely. leaders. So it actually became very good for the country. जॉब्स गई क्या? नहीं, बहुत क्रिएट हुई। जो उस समय टाइपिस्ट थे, जिन्होंने नो थोड़ा प्रोग्रामिंग सीख ली, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बने, प्रोग्रामर बन गए, they actually earned much more than what Yeah, they they were earning. upskilled. But one job disappeared, stenographers, which were very powerful. So that disappeared. But more jobs got created and some became very powerful. जब भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चेंज आता है, जॉब क्रिएशन और होती हैं, वेल्थ क्रिएशन और होता है, नो। कुछ नौकरियां जाती भी हैं, नो, बट ओवरऑल इट बिकम्स मच बेटर इज माय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, एंड दैट्स व्हाई नो आई थॉट आई आंसर दिस क्वेश्चन। खाली ये देखता है कि आप उस चीज को कैसे अडॉप्ट करते हो, जी। नो, इट्स अप टू यू टू अडॉप्ट। एआई का जो सबसे क्लासिक चीज है, दैट यू कैन बिकम अ सिंगल पर्सन कंपनी एंड यू कैन बिकम अ सिंगल पर्सन यूनिकॉर्न। मतलब ये कभी संभव नहीं था। आज से अगर Very well said. 5 Yeah. साल पहले किसी से हम्म। बोलते कंपनी बनानी है तो आप सोचते हजारों लोग का नो रिक्रूटमेंट होगा, बहुत सारे लोग लगेंगे। आज के डेट में आप अकेले ही कंपनी बना सकते हो, अकेले ही आपकी कंपनी यूनिकॉर्न हो सकती है। मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाए थे बोलने के लिए, मैं नॉर्मली मना करता हूँ कि मत बुलाओ, फिर हमको दोबारा नहीं बुलाओगे तुम लोग। तो बोले कि नहीं यार, बार बार बुलाएंगे आपको। ये है एक्चुअल। तो मैंने यूनिवर्सिटी में कहा कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी खोलने पड़े आज, तो मैं ना प्रोफेसर रखूँ ना कोई रखूँ ना, I would actually make AI as no Your the professor. professors, and I put them on, and they can actually teach you a lot. फिर demonstrate भी किया हमने using, because I subscribe to most of these AI tools, कि how AI can actually run a Like a class. chat GPT or a Gemini Exactly, or आप उससे बात करिए, जी। कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, बोलिए लेक्चर देना, उस टॉपिक पे वो लेक्चर दे रहा था। Then I told the university and professors कि अगर आप वही फिक्स चीज रोज रिपीट कर रहे हो क्लास में, और उससे अगर आपकी नौकरी चल रही है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। हाउ डू यू टेक इट टू डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग जो एआई नहीं कर सकता है? तो आज भी अगर मैं किसी सेशन में जाता हूँ, इनोवेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग जाता हूँ, तो पहले मैं चेक करता हूँ अपने एआई से कि वो किस लेवल पे है। अगर मैं उसके ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ तो मुश्किल है। सो एआई इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल द डेटा अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, दैट्स व्हाट एआई कैन डू। उसके बेसिस पे एआई कैन एक्सट्रापोलेट। बट इंसान का जो दिमाग है वो गजब है, मतलब ना, विद हाई एम्पैथी एंड सॉल्यूशन फाइंडिंग, इट कैन क्रिएट समथिंग व्हिच एआई कैन नॉट। तो अगर आप में एम्पैथी हाई है, आपको लोगों का कष्ट नो महसूस होता है, अगर आपकी ख्वाहिश है कि मुझे दुनिया में ना सॉल्यूशन लेके आना है, लोगों के कष्ट ना दूर करने हैं, तीसरा आप में अगर परसिवरेंस है, नो, तो एआई आपके लिए एक टूल है, इट विल मेक यू वेरी पावरफुल, नो। लेकिन अगर आप रोज किसी तरह से नौकरी करने आ रहे हैं और एक ही कार्य रोज कर रहे हैं जो रिपीटेटिव है नेचर में,
है ना? और वो मोहब्बत नहीं है कि मुझे कुछ कुछ करना है, कुछ बदलाव लाना है या इसको कैसे नया कुछ करें या कैसे बदलाव लाएँ, तो फिर आपकी नौकरी खतरे में है। सो एआई इज़ अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट इज़ व्हाट आई से। तो जो भी रिकॉर्ड कहीं पे भी है, जो पहले ना आप कहीं का ले डेटा कहीं था और जी। बोल देते थे, कहीं का कोट कहीं और कर देते थे और जी। यू अपीयर्ड वेरी इंटेलिजेंट, वो टाइम नहीं है। वो तो एक बच्चा भी ना आज कर सकता है। जी। तो अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेशन है आप में और एम्पैथी है और और लोगों को लेके चलने की अगर आपको शौक है तो आप तो यू बिकम वेरी पावरफुल। सो एआई इज अ प्लस प्लस। ऑलवेज एवरीथिंग इज अ हम्म। प्लस। हमने क्या कहा विशाल, जीवन में कभी कुछ भी नेगेटिव नहीं। जब बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस में भी आप हो ना, वही आपको बनाएगा। अगर आप सोचो ज़िंदगी में आप जो भी हो इसलिए नहीं हो कि आप सक्सेसफुल थे, इसलिए कि जो आप फेल किए उसने आपको और मजबूत बनाया एंड बॉट यू टू ग्रेटर सक्सेस। नॉट योर गुड डेज, इट इज योर बैड डेज विच मेक्स यू, गुड डेज तो स्पॉइल्स यू। Wow. No, that's beautiful. I was going to get onto the topic of the failure aspect of it, but you've beautifully said it that it's not the good days that make you, it's the bad days that make you. Sir, I had the absolute privilege of speaking to Captain Rahul Dravid very recently. And on this topic of failure, उन्होंने यही sentiment, I'd like to share it with you. Identical. The feel was identical, the words were slightly different. With your permission, I'd like to share it with you. He said, you know, लोग कहते हैं कि failure is the best teacher. And in other words, he said that's bullshit. हाँ, He said, yes, but it will become your best teacher if you allow it to become your best एग्जैक्टली teacher. यस। हाँ, You can't just sit there and हाँ, say, अच्छा हाँ, मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन आपने उससे क्या सीखा है? हाँ, और ये नहीं कि मैंने बस सीख लिया, क्या सीखा है? So, good times make you complacent also, but you must not let those go. Enjoy the good times and listen. Sir, I can have this conversation with you for days, not only hours, but I do understand the absolute importance of your time. More than you, your time, other people need your time. So I'll make this very quick because I need to ask you if today a person is starting their insurance journey. There are so many insurances. But Tapan sir, please advise us what is the first step towards insurance and what should that insurance be? Ideally, at what stage in your life? इंश्योरेंस आई सेड हैज टू बी देयर व्हाटएवर स्टेज यू आर इन। मतलब वो तो दैट्स आइडियल वे। आपको ये सोचना है कि आपका जो रेनी डे है, जो बताया था आपको शुरू में, वो आपका रेनी डे क्या है। जैसे मान लीजिए आप जब नौकरी शुरू कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या हो सकती है, अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत पैसा लग सकता है अचानक। दैट कैन कॉज यू अ प्रॉब्लम। या आपकी जो मोटरसाइकिल है उसका एक्सीडेंट हो गया तो फिर आपको पैसा बहुत लग सकता है। या फिर अगर जो आपने टिकट बुक की है हॉलीडे के लिए, अगर वो अचानक कैंसिल हो जाती है तो आपके बहुत पैसे डूब जी। सकते हैं। तो फंडामेंटली जब भी आप इंश्योरेंस सोचो ना विशाल, किसी भी स्टेज पे हो, आप एक पन्ने पे लिखो कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत कष्ट दे सकती हैं। जी। बस वही इंश्योरेंस आपको कराना है। मतलब इट्स सो सिंपल। मतलब अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने एसएमई डाला है, तो आपकी जो फैक्ट्री है जो आपने बहुत मेहनत से डाला है, अगर एक बाढ़ आ गया या जैसे उत्तराखंड में फ्लड्स आ गया, आपको आपने बात आश्चर्य, की थी इसके बारे हाँ, में। आपको जी। आश्चर्य 25% बैंकरप्ट हो जाते हैं उसमें से जी, बिल्कुल। एक एक फ्लड के बारे में। पर खर्चा अब कुछ नहीं है। मतलब इट इज लेस देन अ मील विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो उसका आप पहले पन्ना में लिख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ दे सकती हैं या आपको वापस पुश कर सकती हैं। बस उसका इंश्योरेंस ले लो। इट इज सो सिंपल। मतलब इट डज नॉट रिक्वायर Don't be penny wise and pound foolish. Plan for your rainy day and remember कि ये आपको अच्छे कर्म भी दे रहे हैं, एग्जैक्टली क्योंकि आप अगर आपने यूज नहीं किया तो ये आपकी ब्लेसिंग है, एग्जैक्टली लेकिन आपने यूज नहीं किया है तो ये किसी और के काम आ रहा के है काम आ रहा है. Wow, so it's a win-win for एवरी टाइम। it's a win-win for everybody. And one more thing which resonated with me, which I was hearing about you. I follow you on Instagram also, sir. So it's very savvy. I love your reels. और एक रील में मैंने देखा where something resonated with me कि medical expenses are growing at the rate of 10% inflating every year at the lower end. यानी कि आज अगर आपका ट्रीटमेंट 100 रुपए है तो अगले साल वो सेम ट्रीटमेंट का कम से कम 110 रुपए आपको लगने वाला है खर्च। और लोग प्लानिंग तो करते हैं रिटायरमेंट वगैरह की, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस जब अगर नहीं लेते हैं तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। प्लीज गिव मी द एम्फसिस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस very very No, I particularly. think it's a good point. Like I said, one of the biggest rainy days in your life, right from the time
you start working to the time you know even post retirement would be medical expenses. It's very expensive. और अगर इसका फील लेना है तो किसी अस्पताल में चले जाइए, उनकी जो बिलिंग काउंटर है वहाँ बस खड़े रहिए आप, मतलब ऐसे एक घंटा निकाले करिए एंड यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. जिनका इंश्योरेंस है दे जस्ट वॉक इन विद डिग्निटी, द बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर्स एंड दैट्स इट. और जिनका नहीं है वो बेचारे खोजते रहते हैं कि कहाँ सस्ता हो जाएगा, कहाँ ना हमको लोन कौन दे देगा, कौन जो है पैसे देगा. हमने देखा है कि एक बूढ़ा बाप एडमिट हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं कौन पैसा देगा, और उसने पूरे जीवन लगा दिया बच्चों के लिए. हमने तो ऐसे ऐसी वहाँ पे ना कहानियाँ देखी हैं कि आप नेटफ्लिक्स ये सब बेकार है, मतलब आप जाके वहाँ खड़े हो जाओ, यू विल सी द ट्रूथ ऑफ लाइफ हैपनिंग देयर. तो चॉइस आपका है. डू यू वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी? Do you want, if something goes wrong, to be treated by the best doctor, best hospital, or not? For what? For just some thousands of rupees a year? No. It is so simple. It does not require any rocket science. That's why I said insurance is a very simple thing. I think the only thing is कि वो समय हम नहीं निकालते हैं. अगर 10 मिनट बैठ के सोचेंगे, we can figure out what to insure. Second, no, why should we insure? And third, read what is covered. क्यों बहुत बार क्या होता है, हमको कोई इंश्योरेंस बेचता है, हम खरीदते नहीं है. कोई बेच रहा है तो हम क्योंकि जल्दी में हम खरीद नहीं रहे हैं तो हम पढ़ते भी नहीं. फाइन प्रिंट्स नहीं पढ़ते हैं. फाइन प्रिंट्स तो नहीं, वो तो है 2 ही पन्ना, लोग फाइन प्रिंट्स का नाम लगा रखे हैं. देखो, आई स्टैंड करेक्टेड. इट इज नॉट बोरिंग पेपर वर्क, लेकिन बेसिक्स यू मस्ट अंडरस्टैंड. 2 पढ़ने में क्या, तो रेगुलेटर कहता है एक शीट भी देना है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, वो एक ही पन्ना है, उसको पढ़ना है कि क्या चीज़ कवर्ड है, क्या चीज़ नहीं कवर्ड है. अगर नहीं कवर्ड है, अगर उसको कवरेज चाहिए तो कौन सा प्रोडक्ट उसको कवर करता है. वहाँ मतलब इट इज़ नॉट निगोशिएशन ऑफ कि क्या प्राइस है, बिकॉज द प्राइस एंड द कवरेज नो. अगर उसको पढ़ने में आज तक मुझे कोई भी पॉलिसी पढ़ने में मतलब मुश्किल से 10-12 मिनट ज़्यादा नहीं लगा. 10 मिनट वो लगाइए, पढ़िए, समझिए, इतना सा अपने लिए ज़रूर समय दे दीजिए, क्योंकि हमने देखा है लोगों को नो खत्म होते, बर्बाद होते, नो बैंकरप्ट होते. बस so it is an urgent need that you must have in all your investments, plannings, etc. जाते जाते आपका, आई थिंक आई एम गेसिंग नाउ, कि एक फेवरेट फिल्म है आराधना, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर. इज दैट वन ऑफ योर फिल्म्स दैट यू लाइक्ड एंड वॉच्ड? क्योंकि उसमें एक गाना है, जिंदगी एक सफर. So no, I think like you rightfully said, the movies of when I was growing up, they had these kind of songs, जैसे राज कपूर जी के बहुत सारे गाने, एक दिन बिक जाएगा तू माटी के मोल, या जिंदगी एक सफर है, या देवानंद जी के बहुत सारे गाने, अमिताभ बच्चन के गाने थे. So that's a different era altogether. अभी तो मूवीज देखे बहुत दिन हो गया विशाल, बच्चे कभी दिखाते थे हमको. Last time my daughters took me to a movie called Dangal. And I think the only reason it took me is कि पापा तो सेहत के लिए हानिकारक है. I think बापू. So I so now so your beautiful daughters have your sense of humor. So when I was sitting through the movie, then I suddenly realized why they bought me here. अब बजी घंटी. तो इसलिए विशाल जीवन Tapan sir has been outdone by his own 2 beautiful children. Who else could have done it? तो इसलिए विशाल, I think over time, it keeps on changing. Each era has its own beauty. Relish it, enjoy it, love it, and always remember, you create the universe. The universe doesn't create you. So before I let you go, आपका जो पुराना एक ये था ना कि आप भी स्क्रीन के आगे आए, which I mean not in this manner, but of course on the big पर्दा. चलो वो बाद में होगा, but I'd love you to sing a few lines of your favorite songs. I could give you a few suggestions if you'd like. नहीं, ये क्या है कि हम साथ में गाएंगे सर, हम दोनों क्रॉक करेंगे. आपका पॉडकास्ट अच्छा चल रहा है, उसको आप खराब करना चाहते हैं? नहीं, मैं करना चाहता हूँ. नहीं, आप कहोगे मैं गा दूंगा, लेकिन डिजास्टर. मैं बताऊँ एक और कहानी, इसके बाद I'll do the singing for you so you're happy. जब मैं क्लास 5-6 में था ना, तो मैं देखा सब स्टार, उस समय कौन, कुमार गौरव, ये सब स्टार थे जो गिटार बजाते थे और बड़ा ग्लैमरस लगते थे. तो मुझे लगा कि मुझे भी ना गिटार बजाना सीखना है. तो मैंने माँ से बोला, माँ मुझे गिटार बजाना. माँ ने कहा ठीक है. शी बॉट मी द स्पेनिश गिटार, जो द वन दैट इज अ पॉपुलर वन, एंड शी गॉट मी अ टीचर. तो टीचर ने मुझे सिखाया ट्विंकल ट्विंकल स्टार, कम सितंबर, डॉक्टर जिवाको, मुझे अभी याद है वो सब. और फिर 1.5 महीने में ही सेड कि मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगा. तो मैं बहुत दुखी हुआ. मैं पूछा कि सर क्यों नहीं सिखा पाएंगे, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, ठीक तो बजा रहा हूँ. बोले नहीं, उसमें कमी होती तो फिर मुझे लगता कि आप में सेंस ऑफ म्यूजिक नहीं है, तो आप ना मतलब बजा तो ठीक रहे हो, बट फ्लो नहीं है.
सो बुरा लगा। उन्होंने परखा नहीं आपको सर, नहीं, उनकी गलती है। नहीं, नहीं, हमारी गलती नहीं, ही वाज ऑनेस्ट, मतलब टू बी फेयर, जैसे हमने कहा ना, जो चीज़ नहीं है, एवरी इंडिविजुअल इज टैलेंटेड, मेरा वो टैलेंट नहीं है, व्हिच आई नो दैट, मैं 2-3 टैलेंट नहीं है मेरे पास, व्हिच आई नो एंड एक्सेप्टेड, मतलब इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। उस टाइम लगा कि चलो यार ये रह गया, मतलब। तो फिर एक स्कूल में क्वायर सेलेक्ट हो रहा था, तो जी। वो जो टीचर थे, तो वो सब बच्चों को बोले आ करे बोलो, एंड दैट ही वाज पिकिंग अप किड्स, नो। तो मैं सेलेक्ट हो गया अरे विशाल, वाह! हाँ, हाँ। लेकिन जहाँ गाना शुरू हुआ, फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो ऐसा नहीं, 2-3 अटेम्प्ट किया मैंने इस गाने पे ना। तो बहुत सालों बाद आई वाज द चेयरमैन ऑफ इंडो जर्मन चेंबर्स, और एक हाँ जी। इवेंट था कलकत्ता में। मैं कलकत्ता में पढ़ाई किया, लामार्ट्स कलकत्ता में यस ना सर। पढ़ा। तो उस इवेंट में वही ना पियानो बजा रहे थे, वही टीचर हमारे ना। आई वेंट एंड टोल्ड हिम, सर नो, ये दिस इज, तो वो बहुत हंसे, वो भी बहुत हंसे, मैं भी बहुत हंसा। वी हैड अ ग्रेट टाइम, कुछ सालों पहले की बात है ना, इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट। बट इशू यही है, तो वो गाना जिसमें आप चिल्ला सकते हो, जिसमें कोई रिदम नहीं है, वो करता हूँ। और लास्ट थिंग ऑन दिस, तो मेरी बेटी की शादी थी, बड़ी बेटी की, तो उसने कहा कि कांग्रेचुलेशंस। आपको ना डांस करना है, हुँ। ठीक है, 2-3 साल हो गए उसको भी अब। तो मैं अपने सब ये सब विक्रम, रोहित, इन लोग बोला, यार बड़ा समस्या है। बोले क्या समस्या है सर? बोले वो बिटिया कह रही है, वो ना संगीत है, उसमें आपको डांस करना है। बोले हाँ, समस्या तो है सर, मतलब कहते लोग, मैं 2 ही स्टेप कर सकता हूँ। इज़ इट ट्रू? तो वो फिर हमने कहा, तुम लोग सब नालायक हो यार, सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, मुझे ही खोजना पड़ेगा। तो हमने कहा, जो फिल्म स्टार डांस नहीं कर सकते हैं, हाँ। उनके डांस के सीक्वेंस लेके आओ। उसका ना, उनमें से शॉर्ट्स लो जो पॉपुलर हैं, और उसका गाना बनाओ। आह! देन दे सेड हाँ ठीक है। तो व्हाट फिर अ वो ग्रेट आइडिया। फिर ऐसे-ऐसे बेल्ट करना नो, और ये सब करना, तो वो सब लेके हम लोगों ने ना सॉन्ग का सीक्वेंस बना दिया। इट बिकेम सुपर हिट। ऑफ कोर्स। तो फंडामेंटली विशाल क्या है ना, कि अपने नाकामियत को भी सक्सेस बना सकते हो आप, यू हैव टू फिगर इट आउट। तो जो गाना एक है, जो उसपे ना कुछ नहीं करना है, वो गाना है, यम्मा 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 यम्मा, यम्मा, ये ये खूबसूरत खूबसूरत समा, बस आज की की रात रात है है, ज़िंदगी, फिर कल हम कहा कहाँ तुम तुम कहाँ। सी कहाँ। दीज सॉन्ग्स नो डज नॉट रिक्वायर टैलेंट, यू कैन पुल इट ऑफ। सो ऐसा नहीं है कि मैं गा नहीं दूंगा। आई हैव लर्न दिस आर्ट की इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, हाउ डू यू फिगर आउट। तो बेटी के उसमें नाच भी लिया, इट बिकेम अ हिट, नो, कभी आप देखोगे, एंड ऑल ऑफ अस डांस एंड वी डिड अ गुड जॉब, मतलब बहुत ही अच्छा। द सीक्रेट वाज पिक अप ऑल द actors who can't dance and pick up their good And put dance it sequence, together. put it together, तो वैसे The ही most गाना brilliant thought I've ever said. But sir, छोटी मुँह बड़ी बात. Who am I to tell you about your talent, about your leadership? You are the leader of industry. You are the leader of so many beautiful people in their hearts and mind. You've captured my imagination and motivated me so much. Huge thank you for that. But more importantly, I feel that again, बहुत छोटी मुँह, बहुत बड़ी बात. I think your biggest victory in your life so far, sir, is that you have led your life in the principles of what your mother every day recounted to you and recited to you through the Ramayana, and what your father told you about look straight, walk straight, and talk straight, and be straight. Taban sir, I can't tell you what an influence you are in my life, and to a lot of other people, you already know that. More power to you, sir. I wish you a long, healthy, beautiful life, and I only hope that I get to interact with you a lot more. Thank you for being on the Vishal. Thank you, it was my honor. Thank you so much. Really loved every moment of it. Thank you, Thank sir. you so much. Thank you.